So Sneha, let's continue with the lesson on plant anatomy and plant tissues, right? So in the previous lecture, plant tissues we have completely completed. I mean finished. Okay, तो उसमें अपने meristematic tissue, permanent tissue, simple and complex plant tissue. You remember all the parts अच्छे से? सारे types. Today at the end of the lesson, we are finishing the lesson today. Anatomy part खत्म करके, and at the end we are going to have a discussion. क्वेश्चन आंसर रिवीजन, ठीक है? तो पूरा लेसन अपना आज हो जाएगा. ओके, सो आई थिंक लास्ट टाइम हमने कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यूज तक कंप्लीट कर दिए थे, वेयर वी हैड स्पोकन अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू. यू रिमेंबर दैट प्रॉपर्ली अच्छे से? 4 types of cells within the xylem and 4 types of cells within the phloem tissue. ये करके we have also discussed about the types of vascular bundles. Okay, यहाँ तक हमने last time complete कर दिया था. Is my screen visible? अभी आएगा शायद. है ना? Yes. Okay. So you remember vascular bundles का meaning क्या था? The arrangement of the xylem and the phloem tissue in plants, उसको बोलते हैं vascular bundles. Okay, तो हमने ये भी देखा था कि the different types of tissue systems in plants. Epidermal tissue system. Okay, तो इसमें कैसा होता है कि epidermis के साथ साथ the stomata, root hair, trichome, glands, all these are associated structures. याद है ये सब? Okay. Then the second type was ground tissue system, जहाँ पे empty space को fill up किया हुआ part था. Okay, तो cortex, pith, which is mostly made up of parenchymatous cells. Okay, and then was the vascular tissue system consisting of xylem and phloem. तो उसका arrangement and xylem and phloem के बीच में होता है cambium. Okay, तो cambium is responsible for secondary growth. They add extra xylem, extra phloem. Okay, then इसके types हमने देखे थे, different types of vascular bundles. Okay, radial, conjoint, collateral, bicollateral, concentric. And concentric में type आया था amphivasal, amphicribral. यहाँ तक हमने complete किया था last time. ठीक है? So now let's go ahead. Till here, what we have completed is considered under plant tissues and the tissue systems. ठीक है? अब इन सारे tissues के बारे में जो हमने सीखा है उसको याद रखते हुए now we have to understand how the anatomical structure of the plant parts appear under the microscope. ठीक है? कि जैसे सबसे पहले हमें क्या देखना है? The primary anatomical structure. Okay, the word anatomy means what? Anatomy word का meaning क्या है? Appearance. No. Anatomy is the internal structure. Okay. The arrangement of the cells and tissues in the internal structure. उसको बोलते हैं anatomy. उसका study को बोलते हैं anatomy. Okay. तो अभी हमें क्या देखना है कि considering like now you are very well aware about what is the meaning of a dicotyledon and a monocotyledon, right? तो two classes under angiosperms है ना? तो अभी हमें देखना है कि considering angiosperms उसके प्लांट बॉडी में डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स दोनों के रूट, स्टेम और लीफ, इन तीनों का इंटरनल स्ट्रक्चर बेसिकली कैसे दिखता हो? ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब सपोज दिस इज द स्टेम. ओके, ये कैसा स्टेम कंसिडरिंग अ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर. तो इसका मैं क्या करने वाला हूं? आई एम गोइंग टू टेक अ सेक्शन. मतलब आई विल टेक अ पार्ट ऑफ अ स्टेम, एक पीस मिलेगा सपोज, उसको मैं ब्लेड से कट करूंगा. तो स्टेम इज लाइक दिस. ओके, एंड विद अ ब्लेड आई एम गोइंग टू टेक परपेंडिकुलर लाइक दिस. तो उसके बाद परपेंडिकुलर कट करके एक ऐसा पतला सा पार्ट निकालूंगा, लाइक दो ऐसा कट करके
उसको मैं बोलता हूँ सेक्शन. ओके, दैट सेक्शन व्हेन आई ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, कि मतलब इसको मैं कट करके ऐसा रख के अंदर देख रहा हूँ कि क्या है लेयर्स. देन व्हाट आई एम सीइंग इज द प्राइमरी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर. ओके, तो जैसे ये वाला देखो, तो हियर व्हाट आर यू एबल टू सी, दिस इज द टीएस ऑफ अ डाइकॉट रूट. ठीक है, डाइकॉट में एग्जांपल दे, एनी डाइकॉट प्लांट एग्जांपल दे. Plant. एनी डाइकॉट प्लांट. Any dicoto. Mango. ओके, मैंगो प्लांट. ओके, सो अभी यहाँ पे दिया है प्राइमरी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर. मींस व्हाट, कि मैंगो सीड में सॉइल में डाला, इट हैज जर्मिनेटेड, इट हैज गिवन राइज टू अ स्मॉल सीडलिंग. तो सबसे पहले जो उसमें से जर्मिनेट होके आएगा, दैट विल बी अ यंग ग्रीनिश कलर्ड स्टेम. उसके बाद जैसे जैसे वो प्लांट साइज में बढ़ेगा, तो देयर विल बी सेकेंडरी ग्रोथ ऑन द प्लांट, एंड दैट विल लीड टू इंक्रीज इन द गर्थ. तो आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी ग्रोथ, यंग स्टेज में. उस वक्त अगर मैं उसका सेक्शन लेता हूं, तो सेक्शन का आउटलाइन विल बी समवॉट लाइक दिस, सर्क्यूलर, बिकॉज वो स्टेम सिलिंड्रिकल है. तो इस सिलिंड्रिकल आउटलाइन को अगर मैं माइक्रोस्कोप में जूम करके देख रहा हूं, तो आई एम गेटिंग स्ट्रक्चर्स लाइक दिस. यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. करेक्ट. तो ग्राउंड स्ट्रक्चर अगर मैं देखता हूं, बिकॉज इट इज अ रूट, तो ऑन द आउटर मोस्ट पार्ट यू विल बी एबल टू सी द रूट हेयर, जो एपिडर्मिस से निकला हुआ है. देखो, आउटर मोस्ट लेयर जो है, दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. एंड रूट्स के केस में वी यूज द वर्ड एपिब्लेमा. ओके, तो इसके जो सेल्स है, यू कैन सी जस्ट वन लेयर ऑफ सेल्स, रेक्टेंगुलर, जस्ट अरेंज नेक्स्ट टू ईच अदर. तो उसमें से आउटग्रोथ है द रूट हेयर. ओके, देन उसके नीचे यू कैन सी अ लार्ज लेयर, जिसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स भरे हुए पूरा. दैट लेयर इज कॉल्ड कॉर्टेक्स. So the number of layers is not fixed. That will depend from one species to another. But probably around say 6 to 8 layers, maybe 10 layers. That's fine. तो ये काउंट करके ऐसा बनाने का जरूरत नहीं. You can just draw a sufficient number of layers. उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स. ओके, पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या है? The simplest type of plant tissue we have learned. पैरेन्काइमा का फंक्शन मेनली Support करना. The main function of parenchyma cell is storage. Okay, हाँ. Storage of तो food material. क्लोरेनकाइमा का. Collenchyma. हाँ. Collenchyma का mechanical support to some extent. Okay, हाँ हाँ सपोर्ट, हाँ उसको सपोर्ट. Correct. हाँ. ठीक है. या तो यहाँ पे कॉर्टेक्स लेयर है. अब ये कॉर्टेक्स के जितने भी लेयर्स हैं, बट उसका जो आखिरी लेयर है, द लास्ट लेयर ऑन द इनर साइड, दैट इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस. So this statement you have to remember. In the ground tissue part, when there is a layer, many layers of the cortex, the last layer of the cortex is called endodermis. ठीक है. तो अभी starting from the epidermis, followed by cortex and the endodermis, ये जो portion है ना, these three parts which I said, okay, epidermis से लेकर endodermis तक, that layer is called extrastellar portion. इसको हम बोलते हैं extrastellar. Okay, because the word is stele, S-T-E-L-E. Stele का मतलब है the vascular bundles of the conducting tissue. So here you can see endodermis tak, it's the extrastellar portion. So just next to the endodermis, you can see this one more ring of layer अंदर.
ये जो लाइट पिंक वाला जो लेयर दिख रहा है दैट इज एंडोडर्मिस. जस्ट नेक्स्ट टू दैट यू कैन सी समथिंग कॉल्ड पेरीसाइकल. ओके, पेरी का मतलब है पेरीफेरी, सराउंडिंग, एंड द वर्ड साइकिल स्टैंड्स फॉर वैस्कुलर बंडल्स. तो वैस्कुलर बंडल्स का काइंड ऑफ जस्ट कवरिंग, दैट इज पेरीसाइकल. ओके, पेरीसाइकल के अंदर नाउ यू कैन सी ये जो थिक वॉल्ड डार्क सेल्स जो दिख रहा है. यू रिमेंबर समथिंग कॉल्ड प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम. टू टाइप्स ऑफ जाइलम सेल्स. ये जो पॉलीगोनल सेल्स दिख रहे हैं हैविंग थिक वॉल्स, दे आर द जाइलम सेल्स. जो उसमें जो सबसे बड़े वाले जाइलम टिश्यू है दैट इज द मेटाजाइलम, and the smallest ones are protoxylem. So you can see the arrangement over here. Xylem के 4 arms दिख रहे, correct? And ये जो xylem हुआ, this is metaxylem, that is protoxylem. Okay, between two lines of the xylem you can see this layer, ये वाला blue में जो दिख रहा है, that is the phloem. Okay, so you can see phloem, xylem, phloem, xylem. Okay, and then the remaining portion, ये जो बीच बीच के ब्लैक वाले सेल्स जो दिख रहे हैं यहाँ पर थिन वॉल्ड, वो है पित्त, which is again made up of parenchyma. इसलिए ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं कि वो स्पेस खाली नहीं रह सकते है ना. wherever it is empty वहां parenchyma भर दिया तो स्टोरेज का काम करेगा. okay, so this condition what you are able to see कि there are 4 strands of the xylem in which metaxylem is towards the center, protoxylem towards the periphery. इसको बोलते हैं exarch condition. That is called as exarch. And because there are 4 strands of the xylem, तो इसलिए उसको बोलते हैं tetrarch condition. Tetra मतलब 4. Okay, then एक और चीज बहुत केयरफुली ध्यान में रखना है, Casparian strip. ये क्या है पता है? आई विल शो यू दिस वे. एंडोडर्मिस को ध्यान से देखो. एंडोडर्मिस विच इज द लास्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स. ओके, तो अभी एंडोडर्मिस के सेल्स का शेप कैसा है ना, इट इज लाइक बैरल शेप, लाइक दिस, ऐसा डब्बे डब्बे जैसे. ओके, एंडोडर्मिस का मेन रोल क्या होता है पता है कि नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द रूट. रूट का मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन. तो ये टोल्ड एग्जांपल ऑफ मैंगो. तो मैंगो प्लांट का जो रूट है जमीन में से पानी एब्जॉर्ब करेगा, एंड द एब्जॉर्प्शन इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द रूट हेयर. तो रूट हेयर के सेल से जो पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, दैट वाटर इज कमिंग इनसाइड, ट्रेवलिंग थ्रू द सेल्स. एक सेल से दूसरा सेल, दूसरे सेल से तीसरा सेल. ओके, तो ये जो पानी अंदर की तरफ जा रहे हैं, internally this water should reach till where? Ultimately water का upward translocation कौन कर रहे हैं? Which tissue? Translocation of water all the way to the leaves is done by leaves, xylem. xylem, correct? तो यहाँ पे रूट हेयर है, यहाँ से पानी अंदर अंदर आ रहा है तो उसको जाइलम के सेल तक जाना होगा. हाँ. करेक्ट. तो अभी कॉर्टेक्स इज देयर एवरीवेयर, यू कैन सी कंप्लीटली फिल्ड अप. तो पानी अंदर कैसे भी कहीं से भी आ सकता है, लाइक दिस. बट व्हेन इट रीचेस द स्टीलार पोर्शन, ये जो अंदर वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं स्टीलार पोर्शन, बिकॉज यहाँ पे वैस्कुलर बंडल्स है. तो व्हेन द वाटर रीचेस हियर, ओके, नाउ द पॉइंट इज जाइलम जो है प्रोटोजाइलम, यू कैन सी इट इज ओनली ऑन दिस पोर्शन या फिर ओनली ऑन दिस साइड. 4 अलग अलग पॉइंट पे ही जाइलम मिलेगा. इन द रेस्ट ऑफ द रीजन देयर इज नो जाइलम इन्वॉल्व्ड. तो अगर पानी इधर आते आते यहां से अंदर गया तो वो गलती से फ्लोएम में चला जाएगा, विच इज इनकरेक्ट. तो एंडोडर्मिस ये कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं? ऑन द वॉल ऑफ द एंडोडर्मिस, ऑन द आउटर वॉल
there is a deposition of a substance called suberin. सुबेरिन नाम का एक मटेरियल सेल वॉल पे डिपॉजिटेड है एंडोडर्मिस के. तो व्हेन द वाटर विल कम टू द रॉन्ग प्लेस बिकॉज ऑफ दिस सुबेरिन, वाटर विल नॉट एंटर द एंडोडर्मिस. तो जहां जहां पर जाइलम नहीं है वहां के एंडोडर्मिस के सेल्स के वॉल के ऊपर सुबेरिन का डिपॉजिशन है, so that the water is not allowed to enter from that side. एंड ये जो सुबेरिन का डिपोजिशन से एंडोडर्मिस का लेयर बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप. तो ओनली दैट एंडोडर्मिस सेल which is directly in line with the xylem, this one, वहां के एंडोडर्मिस के सेल पर there is no suberin, no casparian strip, which means that endodermis cell is permeable to that water. तो मतलब इनडायरेक्टली इट इज अलाउिंग और इट इज गिविंग अ डायरेक्शन कि पानी एब्जॉर्ब करो तो जाइलम पे ही फोकस होके आना चाहिए, सो दैट द वाटर गोज ओनली इनटू जाइलम, नॉट इनटू एनी अदर सेल. सी द प्लानिंग इन्वॉल्व्ड. ओके, इसीलिए कैन यू सी जाइलम के लाइन में जो एंडोडर्मिस दिख रहा है वो अलग दिखाया, दिख है ना, वेयर देयर इज नो, यहाँ पे देख एकदम प्रोटोजाइलम के लाइन पे, तो देयर इज नो कैस्पेरियन स्ट्रिप. तो एंडोडर्मिस के वो सेल्स जो प्रोटोजाइलम के लाइन में है, विच इज गाइडिंग द वाटर इनटू द जाइलम, उन सेल्स को बोलते हैं पैसेज सेल्स. गॉट इट? which is very prominently seen in the roots. So when you talk about the internal structure of the dicot root, outermost to innermost, what are the layers you are able to see? The outermost layer is the epidermis या epiblema, from which arises the root hair. Okay, root hair आएगा वहां से. And after the epiblema or the epidermis, what is the next layer you see? After the epidermis, the next layer is क्या पेलिफेरस लेयर. वो जाने दो, वो epidermis का ही पार्ट है. It is the cortex. Okay, cortex. Cortex. Cortex का last layer is एंडोडर्मिस. after endodermis, फ्लोएम, हाँ, फिर पेरिसाइकल. पहले पेरिसाइकल, one ring of endodermis, पहले one ring of फिर pericycle. pericycle. Inside pericycle, फ्लोएम और जाइलम. correct, alternating with each other. And you understood the meaning of exarch, tetrarch. Exarch मतलब metaxylem in the center, protoxylem towards the periphery. That is exarch. And tetrarch मतलब you can see 4 strands of the xylem tissue. इसलिए tetra. समझा? हाँ, हाँ. Internal structure of dicot root you are going to explain with these terms. and ये छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करना. ठीक है, ड्रॉ करने के लिए भी क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखना, आई विल टेल यू. ठीक है, अभी ये हमने देखा डाइकॉट रूट. ओके, लेट्स टेक अ लुक एट द मोनोकॉट रूट एंड सी द डिफरेंस. द बेसिक पैटर्न रिमेन्स द सेम. देयर विल बी एपिब्लेमा, रूट हेयर. ओके, बट उसके बाद यू कैन सी देयर इज वन पिलीफेरस लेयर के नीचे यू कैन सी अ थिक वॉल लेयर हियर. ओके, लाइक कंपेयर कर दोनों डायग्राम को. ये डाइकॉट है, ये मोनोकॉट है. तो हियर यहाँ पे पेलिफेरस के नीचे यू सॉ ओनली वन लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, बट यहाँ पे देखना यू कैन सी मल्टी लेयर स्ट्रक्चर. ओके, देन यू हैव द कॉर्टेक्स, अगेन अ लार्ज नंबर ऑफ लेयर्स. Here also you are having passage cell, Casparian strip, endodermis, pericycle, somewhere see here, and you know the meanings of these now. Internally, see how the xylem and the phloem are arranged. यहाँ पे xylem का कैसा था? There were 4 strands. एक बड़ा metaxylem center पे, from which there were 4 arms of the xylem.
इसलिए टेट्रार्च। बट यहाँ पे देखना हाउ मेनी जाइलम, 1 2 3 4 5 6 7 8, so more than 4 we just say poly, so it is polyarch condition. Okay, and you can notice this कि wherever there is protoxylem वहां पर you can get the passage cell endodermis पे, and एकदम center पे you can notice the pith which is parenchymatous. So the basic structure between a dicot root and monocot root is not much different. Main points क्या आएगा, यहाँ टेट्रार्च है वहां पॉलीआर्च है, बट दोनों भी एक्सार्च है, ये मेन डिफरेंस है. एंड देन यू कैन सी यहाँ पे द स्ट्रक्चर इज लाइक मोर ऑफ कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस पोर्शन, जो डाइकॉट में नहीं है. ओके, अदरवाइज दे आर मोस्टली सिमिलर. एनी मोनोकॉट एग्जांपल? मेज. कॉमन सा है, लाइक व्हेन यू डू प्रैक्टिकली आल्सो, जब सेक्शन लेकर देखना है तो सनफ्लावर का रूट लिया, मेज का रूट लिया, तो यू गेट द टिपिकल स्ट्रक्चर्स इन बोथ. ओके, तो ये दोनों जो हमने देखा, दिस वाज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द रूट्स ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट. ठीक है, हर पार्ट का रहता है, मतलब लीफ, स्टेम, रूट, स्टेम, लीफ, flower. ये तीनों ही देखना है, फ्लावर्स वगैरह का नहीं. रूट, स्टेम, लीफ, रूट्स का हो गया, अंडरस्टूड. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टेम, प्राइमरी internal structure of the stem. Okay, again you find the similar basic pattern, देखो TS of dicot stem. Okay, अब stem में कैसा रहेगा कि सबसे important, what do you find over here, there is something called epidermal hair. वहां root hair था, तो stem आएगा तो root hair नहीं लिखना है, of course it is understood. इस stem में हम root hair नहीं लिखेंगे. ओके, तो यहाँ पे एपिडर्मल हेयर आएगा, जैसे स्टेम के ऊपर कभी हाथ फेरो तो यू कैन फील दैट रफनेस. ओके, वो एपिडर्मल हेयर, ट्राइकोम्स बोलते हैं, कभी कभी ग्लैंड्यूलर होते हैं, कुछ प्लांट्स के स्टेम के ऊपर हाथ चलाओ तो खुजली होने लगते हैं. तो दैट इज बिकॉज द एपिडर्मल हेयर हैज दोस केमिकल्स इन इट, प्लांट ने अपने डिफेंस के लिए डाल के रखे. Okay, so whenever it comes in contact with the skin of any animal, it will inject those chemicals, and फिर animal खो जाते बेटा. Getting it? So it's a kind of offense and defense for the plant. ठीक है, again it is not a constant feature. कुछ plants में epidermal hair होता ही नहीं, directly the epidermis. Okay, so we are talking in general about dicot, so it will vary from one species to another. Okay, so then common thing, epidermis सबसे बाहर, right? उसके ऊपर एक क्यूटिकल का लेयर हो सकता है, some kind of thickness, because we are talking about the stem, and stem has to be thick and sturdy. तो क्यूटिकल is the one जो बाहर से उसको एक मजबूती देगा and protection भी देगा. Okay, below the epidermis you can see a layer of collenchyma. So you remember collenchyma का मैंने बताया था कि the thickenings on the walls are on the corners. They are living cells, but the wall thickenings is in the corners. So can you see that structure in the diagram here? Okay, अभी कंपेयर कर, ये जो कोलेनकाइमा दिख रहा है उसके नीचे देख क्लोरेनकाइमा, पैरेनकाइमा. See the difference in the three layers. सेल्स में डिफरेंस देखना, क्लोरेनकाइमा को ग्रीन में बताया गया, तो व्हेन यू ड्रॉ इट यू कैन नॉट शो इट इन ग्रीन, तो उसके अंदर वो डॉट 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 बनाया है, दे रिप्रेजेंट द क्लोरोप्लास्ट बिकॉज दे आर क्लोरेनकाइमा. एंड पैरेनकाइमा देखना ये, तो यहाँ पे क्या चीज ध्यान में रखना है पता है, व्हेन यू ड्रॉ इट, व्हाइल ड्रॉइंग, three main points you have to remember when you draw this kind of anatomical diagrams. The first thing, shape and size of the cells. कि जैसे कॉर्टेक्स का भी लेयर देखिए, पैरेनकाइमा जो बना है, see the shape and size of the cells. It is like ऐसे oval to spherical type, ऐसा shape है.
दिख रहे हैं? बट यू सी द जाइलम, अंदर देखना, जाइलम कैसा है? पॉलीगोनल, तो द शेप मैटर्स। एपिडर्मिस का सेल्स कैसा है? रेक्टेंगुलर लाइक दिस। पेरिसाइकल कैसा है? इट इज थिन वन लाइक दिस। सो शेप एंड साइज जो है ना, अगर वो सारे लेयर्स के बराबर से बना दो तो यह डायग्राम विल बी करेक्ट। एंड एक और चीज ध्यान में देना, ये जो पिथ अंदर है, पिथ देखना कहां से, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर दिस साइड, एंड फ्रॉम हियर द एंटायर रीजन इज मेड अप ऑफ पिथ सेल्स। तो बट ध्यान से देखना, पित्त में ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, यू कैन सी सेल्स आर स्मॉल इन साइज, बट जैसे जैसे बाहर की तरफ आ रहे हैं द सेल्स आर इंक्रीजिंग इन साइज। तो while drawing you have to show that gradation कि अंदर अंदर जो भर रहे हैं वो छोटे छोटे सेल्स है, जैसे जैसे और अंदर की तरफ जा रहे हैं तो यू आर गेटिंग लार्जर सेल्स। तो शेप एंड द साइज ऑफ सेल्स मैटर। वो अगर प्रोपोर्शनेटली बनाए तो योर डायग्राम विल बी करेक्ट। सेकेंड थिंग आफ्टर शेप एंड साइज, वॉल थिकनेस, कि हर एक सेल का वॉल एक जैसा थिक नहीं होता। इफ दिस इज द जाइलम, so the wall is highly lignified, so you will draw thick ones like this. पैरेन्काइमा है, ये देखना पित्त और पैरेन्काइमा एकदम सबसे थिन वॉल, तो पेंसिल रख के एक ही बार चलाना है बस। बट कोलेनकाइमा देखना कैसा है, इट इज नॉट कंप्लीटली थिक कंप्लीटली थिन, दोनों के बीच का। तो व्हेन यू ड्रॉ एवरी लेयर the wall thickness of the cell should be properly observed. So accordingly you should move your pencil. कि जाइलम ड्रॉ कर रहे तो पेंसिल से ही डबल ट्रिपल शेड कर तो थिक वॉल, पैरेन्काइमा बना रहे एक ही बार कर थिन वॉल। ओके, तो शेप एंड साइज, देन सेकेंडली वॉल थिकनेस, thirdly इंटरसेल्यूलर स्पेस, कि जैसे ये मैं एपिडर्मिस का लेयर बना रहा हूं, वन लेयर वन सेल, दिस इज अनदर वन, दिस इज थर्ड वन, फोर्थ वन, कैन यू सी एनी स्पेस बिटवीन द सेल्स? नो। बट ये देखना पैरेन्काइमा देखना कैसे, कॉर्टेक्स पित्त वगैरह देखना, देयर इज लिटिल बिट ऑफ स्पेस बिटवीन द सेल्स, दिख रहे? तो यहाँ पे देखना, यू कैन सी सम स्पेस बिटवीन द सेल्स। तो कौन से रीजन में स्पेस है या नहीं है, यू हैव टू ऑब्जर्व दैट केयरफुल। ऑब्जर्व द फ्लोएम टिश्यू, छोटे छोटे सेल्स, उसका शेप भी देखना कैसा, फ्लोएम का कैसा है, दे आर स्मॉल लाइक दिस, उसमें डायरेक्टली ऐसा करके बना सकते लाइक दिस, तो देयर इज नो स्पेस बिटवीन द सेल्स। While drawing you can fill it up like this. अभी समझा? तो ये मैं होमवर्क दूंगा, तो when you will draw it you will understand कैसे ध्यान में रखना है, बट ऑब्वियसली एक बार में शायद नहीं होगा, you will have to keep practicing, but it looks difficult but it is easy. ये 3 पॉइंट्स याद रखना, shape and the size of the cell, the wall thickness and intercellular space. ये तीनों बराबर से समझ के अगर ड्रॉ किया ना, योर डायग्राम विल बी करेक्ट। ठीक है, समझा? टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम। ओके, यहाँ पे देखना डाइकॉट स्टेम में ये जाइलम है नीचे एंड ऊपर फ्लोएम है। ओके, दोनों के बीच में देखना यू आर फाइंडिंग अ कैम्बियम टिश्यू। So between the xylem and phloem, when there is a cambium tissue present, we call it open vascular bundle. याद है? ओके, एंड बाकी सारे पोर्शन में पित्त का पैरेन्काइमा भरा हुआ। तो कैम्बियम के सेल्स का भी शेप देखना कैसा है, थिन वन, इलोंगेटेड ऐसा। ओके, तो कैम्बियम है डाइकॉट स्टेम में, इसीलिए द डाइकॉट स्टेम कैन एनलार्ज इन द गर्थ। ये सेकेंडरी ग्रोथ करेगा ना, हियर वी आर शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी ग्रोथ।
but जब इसका secondary growth होगा तो there will be one more layer of xylem, one more layer of phloem, leading to the increase in girth of the plant. ठीक है, all the layers are clear. Primary, dicot stem, and ये ground plan जो दिया है एकदम outline, इसमें देखना in this dicot stem you can see all the vascular bundles are arranged in a ring. एक प्रॉपर एक रिंग लाइक फॉर्मेशन में है, बीच में पूरा पित्त है, ये बाहर का रीजन पूरा कॉर्टेक्स है. ओके, बट यू कंपेयर दिस विद अ मोनोकॉट स्टेम. मोनोकॉट का स्टेम कितना सिंपल है देखना. अंदर देखना फनी तीनों मास्क बने हुए जैसा. राइट, फनी फनी क्यों है ऐसा अरेंजमेंट है. इट इज द अरेंजमेंट लाइक दैट. ओके, तो मोनोकॉट स्टेम का सी द ग्राउंड प्लान. Dicot stem में you can see all the vascular bundles are arranged systematically in a ring. But monocot stem के अंदर vascular bundles को देखना, there is no systematic arrangement. All the vascular bundles are scattered. इसको याद रखने के लिए कैसे पता है कि imagine you are in a classroom filled with many students. When there is no teacher in the classroom, you are a monocot stem. Okay, and as soon as the principal enters the class, all the students are like a dicot stem. Okay, just a second. Okay, so I was telling कि ground plan या outline जो है diagrammatic view in a monocot stem and dicot stem. इसमें difference कैसा है कि it is like no teacher in the classroom, so all the students are like this. And as soon as the principal enters the classroom, everybody is seated nicely in their positions. Okay, ऐसे याद रखना है, ये पॉइंट लिखना नहीं है. ठीक है. ओके, तो यहाँ पे मेन पॉइंट कि इन अ मोनोकॉट स्टेम द वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड. ओके, दे आर इनसाइड. तो एक रिंग में ऐसा नहीं होता है, दे आर इन अ स्कैटर्ड फॉर्म. बट इवन इफ इट इज स्कैटर्ड, यू ऑब्जर्व वन थिंग, दोज वैस्कुलर बंडल्स व्हिच आर लार्जर इन साइज, दे आर इन द सेंटर, and the smaller vascular bundles are towards the periphery. दिख रहा है वो? तो enlarged view में भी देखना, ये जो दिख रहा है this vascular bundle and this one, they look funny, I can understand. ये जो दो बड़े बड़े आंखें दिख रहे हैं वो मेटाजाइलम है, and उसके साइड साइड में प्रोटोजाइलम है. ओके, and ये जो है बड़ा वाला vascular bundle in the center. ओके, बहुत मजा आएगा ये ड्रॉ करने में, है ना. दो आंख, एक मुंह, एक नाक. Okay, so metaxylem, protoxylem, you have to draw it properly. Surrounded by, ये दिखना, ये जो डार्क वाले लेयर दिख रहे हैं सेल्स, कितने थिक वॉल्ड है देखना. It is drawn like this, एकदम ऐसे polygonal. Okay, having thick walls like this. Okay, and xylem का सेल्स देखना कैसे बना है, ऐसा डबल लाइन बनाया, मतलब इट्स अ थिक वॉल. एंड अंदर ये ब्लू वाला जो दिख रहा है वो फ्लोएम के सेल्स है. तो फ्लोएम के सेल्स कैसे रहेंगे, इट विल बी लाइक दिस. तो ये ड्रॉ करना, तभी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा. तो हियर एज सच द लेयर्स आर नॉट मच डिफरेंशिएटेड. यू कैन फाइंड अ एपिडर्मिस एंड क्यूटिकल अबव इट. उसके नीचे मिलेगा हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस जो है वो कोलेनकाइमा टिश्यू का बना होता है. ओके, and then there are few cells of the chlorenchyma also found. Okay, and then ये जो लंबा बहुत सारे layers वाला दिख रहा है, that is made up of ground tissue जो है parenchyma. And then उसी parenchyma में you can see the vascular bundles are scattered. And in the vascular bundle, the another major difference which you find, यहाँ पे dicot stem में you can see a cambium. यहाँ पे नो कैम्बियम. दैट्स वाई यहाँ पर है क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स. ओके, तो इन अ केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ. डाइकॉट स्टेम में देयर इज अ सेकेंडरी ग्रोथ इनवर्ड. दैट इज अनदर मेजर डिफरेंस. समझा अच्छे से? डायग्राम में अच्छे से ध्यान रख पाएगी. ओके, एंड देयर कैन बी ऑल्सो डिस्टिंग्विश क्वेश्चन. हाँ, प्रैक्टिस करना होगा.
एंड इसके अलावा ना एग्जाम में डिस्टिंग्विश बिटवीन जैसा भी आ सकता है क्वेश्चन। हाँ, तो इसमें लिख सकते हैं कि मोनोकॉट में यस कैम्बियम नहीं है उसमें, अभी मैंने एग्जैक्टली वही सोचा यस, कि तो इसलिए रियल वो वर्ल्ड पॉइंट्स जो मैं बता रहा डाइकोटोमी। हूँ ना तो ऐसे ही आएगा एग्जाम में हाँ कि डिफरेंशिएट बिटवीन टीएस ऑफ डाइकोट स्टेम, टीएस ऑफ मोनोकॉट स्टेम। तो 4-5 हाँ पॉइंट आराम से लिख सकती है। Here the vascular bundles are arranged in a ring. Here vascular bundles are scattered. Okay, cambium present, cambium absent, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स है। समझा? बट कैसे समझ में आ रहा है, किसका स्टडी हो रहा है अच्छे से? ओके, तो रूट हो गया, स्टेम हो गया। नाउ नेक्स्ट इज लीफ। ओके, अभी जो लीफ है इसमें देयर इज नथिंग कॉल्ड कॉर्टेक्स एज सच। लीफ कैसा आता है? रूट एंड स्टेम एक्सटर्नली देखेंगे तो एक सिलिंड्रिकल पीस की तरह, बट लीफ कैसा है? फ्लैट स्ट्रक्चर। तो उसका जब हम सेक्शन लेते हैं एक फ्लैट स्ट्रक्चर का, तो मेन थिंग यू गेट एन अपर एपिडर्मिस एंड अ लोअर एपिडर्मिस। तो लीफ में 2 एपिडर्मिस होते हैं। ओके, दोनों मोनोकॉट डाइकॉट दोनों में देखेंगे तो यू आर गेटिंग एन अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। कि अगर एक लीफ लेता हूं मैं, ओके, एक लीफ अगर मैं लेता हूं ओके, तो लीफ में ऊपर वाला लेयर, नीचे वाला लेयर। ओके, तो अभी डाइकॉट लीफ में देखना ऑन द अपर एपिडर्मिस, जिसको एडैक्सियल एपिडर्मिस भी बोलते हैं, देयर इज नो स्टोमेटा या वेरी लेस स्टोमेटा। बट जो लोअर एपिडर्मिस है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एबैक्सियल एपिडर्मिस, रिमेंबर एडैक्सियल एबैक्सियल एक ही लेटर का फर्क है, बट यहाँ पे बी है, बी मतलब बिलो, लोअर एपिडर्मिस, ऐसे याद रखना। ओके, तो ऑन द लोअर एपिडर्मिस यू कैन फाइंड स्टोमेटा प्रेजेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं कि इन अ डाइकॉट लीफ देयर इज मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन द लोअर एपिडर्मिस एज कंपेयर्ड टू द अपर एपिडर्मिस। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कि डाइकॉट प्लांट में जो लीफ है इट इज ओरिएंटेड लाइक दिस, so the upper part is receiving the direct intense sunlight, lower part is like properly shaded. So stomata से क्या होता है? ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर। तो अपर सरफेस में अगर ज्यादा स्टोमेटा रहेगा तो ऊपर से प्लांट ज्यादा पानी लूज करेगा, देयर विल बी मोर डिहाइड्रेशन टेकिंग प्लेस, which is avoided by being having more stomata on the lower surface. दोनों एपिडर्मिस के बीच में you are having something called mesophil. Meso मतलब in between, fill मतलब फाइला, that is leaf. तो दोनों एपिडर्मिस के बीच वाले टिश्यू को मेसोफिल बोलते हैं। ओके, बट इन अ डाइकॉट लीफ द मेसोफिल इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स। एक है पैलिसेड मेसोफिल, दूसरा है स्पॉन्जी मेसोफिल। एंड ये डिफरेंस मोनोकॉट लीफ में क्या होगा कि बिटवीन बोथ द एपिडर्मिस एंटायर मेसोफिल इज ऑफ ओनली वन टाइप। ऑल द मेसोफिल सेल्स आर ओनली ऑफ स्पॉन्जी टाइप, इसलिए सिर्फ मेसोफिल बोलते हैं, पैलिसेड स्पॉन्जी करके बोलते ही नहीं। बट डाइकॉट लीफ में देयर इज पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। पैलिसेड मेसोफिल बिलो द अपर एपिडर्मिस एंड बिलो द पैलिसेड स्पॉन्जी मेसोफिल। पैलिसेड मेसोफिल के सेल्स का शेप देखना, दे आर इलोंगेटेड फिंगर शेप्ड सेल्स, दिख रहा है, एंड कंपैक्टली अरेंज्ड, नो स्पेस बिटवीन देम। बट स्पॉन्जी मेसोफिल का देखना, the cells are oval to spherical and there is a lot of space between the cells, air cavity. इसीलिए किसी भी डाइकॉट लीफ को ध्यान से देखना, से मैंगो लीफ फॉर एग्जांपल, अपर सरफेस इज डार्क ग्रीन, लोअर सरफेस इज लाइट ग्रीन। ये ऊपर एंड लोअर सरफेस का जो कॉन्ट्रास्टिंग ग्रीन कलर्स है वो एकदम क्लियर दिखेगा डाइकॉट लीफ में। यू ऑब्जर्व एनी डाइकॉट लीफ, एग्जाम में ये गिव रीजन क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि in a dicot leaf the upper surface is dark green, lower surface is light green. So your answer should be in the internal structure of a dicot leaf
there is palisade mesophyll below the upper epidermis, which are compactly arranged more in and having more amount of chloroplast within it, which gives it a dark green color. Spongy mesophyll cells are less in number, loosely arranged, having less number of chloroplast. That's why they are light green in color. तो ड्रॉ करते वक्त भी वैसे हाईलाइट करना. ओके, एंड लीफ के स्ट्रक्चर में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ मिडरिप, वेन्स, वेनलेट्स. नाउ यू नो दैट, राइट? तो जब मैं उसका सेक्शन लेता हूं तो व्हेन आई पास द सेक्शन थ्रू द मिडरिप एंड द वेनलेट्स, तो वो पार्ट मुझे ऐसा दिखेगा. ये पार्ट सर्क्यूलर इन आउटलाइन, ये मिडरिप पोर्शन या वेन्स है. उसके अंदर होता है जाइलम फ्लोएम. So you can see the dark ones xylem cells and the ones in blue color small one phloem cells. And इनका जो covering layer है, यहाँ पे endodermis, pericycle वगैरह कुछ नहीं है, unlike the root and stem. Here what you are having is something called bundle sheath cells. यहाँ bundle मतलब वो bundle बाज वाला bundle नहीं, यहाँ bundle का मतलब है vascular bundle. Okay, and sheath का मतलब है covering. तो जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स हैं, उसके कवरिंग को बोलते हैं बंडल शीथ. ओके, ये डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ. मोनोकॉट लीफ में भी देख कैसे है. सो यू कैन सी द वेन्स, पैरेलल वेनेशन है, यू रिमेंबर दैट. मोनोकॉट में तो ये मेन वेन, ये उसका पैरेलल, ये तीसरा उसका पैरेलल. सेक्शन में देखना कैसे दिख रहा है. कैन यू इमेजिन इन 3D में? समझ रहे हैं? इमेजिन अ ग्रास लीफ, एक के बाद एक पैरेलल लाइन से वेन्स के, उसका मैंने सेक्शन लिया. तो इंटरनली व्हाट आई एम एबल टू सी 3 डिफरेंट वैस्कुलर बंडल्स, 3 और 4 व्हाटएवर. ओके, बट हर एक वैस्कुलर बंडल में जैसे ये मिडरिब है और ये वेन्स है, तो साइज में डिफरेंस दिखना चाहिए. एंड इनसाइड दैट आल्सो, बाहर का लाइनिंग को बंडल शीथ बोलेंगे. And one side you have the xylem cells, another side you have the phloem cells. That's it. So dicot leaf and monocot leaf में main differences क्या हो गया? Firstly, distribution of the stomata. है ना? Monocot leaf में you are getting stomata on both the surfaces. And internally, main differences between the mesophyll. यहाँ mesophyll divided into palisade and spongy. यहाँ no such division. Correct. Third point, ये पैरेलल वेनेशन और ये रेटिकुलेट वेनेशन, तो वेन्स का वैस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट भी वैसा दिखेगा. एलिमेंट अलग है. वेरी गुड, वेरी अच्छा. ओके, एंड यहाँ पे एक और चीज देखिए, जो वैस्कुलर बंडल है डाइकॉट में, उसके आसपास यू कैन सी क्लोरेनकाइमेटस सेल्स. हाँ, और कलर का भी डिफरेंस है कि ये ज्यादा डार्क में है और ये डायग्राम में जस्ट टू अंडरस्टैंड वो कलरिंग किया है वो नहीं बोलना है. अभी फ्लोएम यहाँ पे ब्लू में दिखा है, रियल में फ्लोएम इज नॉट ब्लू एज सच. नहीं वो नहीं, देन वो मेसोफिल है ना, पैलिसेड मेसोफिल, वो ज्यादा डार्क कलर है. करेक्ट, पैलिसेड मेसोफिल, राइट. यस, दैट्स राइट. एंड अनदर पॉइंट कि जैसे ये वैस्कुलर बंडल के साथ जो क्लोरेनकाइमेटस दिख रहे हैं, यहाँ पर वैस्कुलर बंडल के साथ यू कैन सी स्क्लेरेनकाइमेटस पैच. ओके, ये सब पॉइंट्स याद रखना. इजी है ना, याद रह जाएगा, राइट? तो दैट वाज अबाउट द प्राइमरी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर. ओके, अभी ये क्या है? दिस इज समथिंग कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ. नाउ यू नो व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ. कि जैसे प्राइमरी ग्रोथ एक छोटा स्टेम है, तो उसका चौड़ाई बढ़ाना, गर्थ. तो जो गर्थ बढ़ेगा, है ना, तो उसका एक्टिविटी जो होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ द कैम्बियम. इसलिए हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ डाइकॉट स्टेम में पढ़ते हैं. वी कैन नॉट लर्न दैट इन मोनोकॉट स्टेम. करेक्ट. तो यहाँ पे मेन हमें क्या देखना है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए? लाइक यू डोंट हैव टू मच डिटेल्स अबाउट दिस, बट इतना समझ ले कि जो कैम्बियम टिश्यू है, दिस वन, ये किधर है? यू कैन सी अंदर जाइलम, बाहर फ्लोएम. दोनों के बीच में जो लाइंस दिख रहा है ना, दैट इज द कैम्बियम टिश्यू. तो
उसको बोलते हैं फैसिक्यूलर कैम्बियम। ओके, उसके साथ साथ देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटरफैसिक्यूलर कैम्बियम, कि दो वैस्कुलर बंडल के बीच में द कैम्बियम टिश्यू विच इज कंटेनिंग, ये वाला पोर्शन वैस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम फ्लोएम के बीच में जो है दैट इज फैसिक्यूलर कैम्बियम, एंड दो वैस्कुलर बंडल के बीच में जहां जाइलम फ्लोएम नहीं है वहां जो कैम्बियम है दैट इज इंटरफैसिक्यूलर। समझा? तो जो अंदर वाला कैम्बियम है दिस वन वो फैसिक्यूलर, और ये जो बाहर वाला कैम्बियम है इंटरफैसिक्यूलर। इतना याद रखना। ओके, सो कैम्बियम का फैसिक्यूलर इंटरफैसिक्यूलर अल्टरनेट रहेगा, फॉर्मिंग अ कंप्लीट रिंग। एंड इस कैम्बियम टिश्यू में देयर इज अ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। So because of the meristematic activity, what will this cambium tissue do? It will divide, it will give rise to new cells. वो new cells क्या डालेगा? See the diagram C, there will be more of secondary phloem, more of secondary xylem. So secondary xylem towards the inner side, secondary phloem towards the outer side. तो मतलब उसके अंदर क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो प्राइमरी ग्रोथ था जिसका स्ट्रक्चर हमने देखा, उसमें जो वैस्कुलर बंडल्स थे they were the primary xylem and primary phloem having the cambium. अब उस कैम्बियम के एक्टिविटी के वजह से जो और ज्यादा सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम आया, वो उसका एक और रिंग बना दिया। तो जब एक और रिंग बन गया तो उसमें भी कैम्बियम टिश्यू था, फैसिक्यूलर इंटरफैसिक्यूलर। अगेन दे विल हैव मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, again they will divide, so there will be one more ring, again secondary xylem, secondary phloem। समझ रहे हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बढ़ता जाएगा, मतलब दैट इज यू कैन सी इन द फोर्थ डायग्राम दिस वन। तो ये सारा एक्टिविटी जो हो रहा है कैम्बियम के वजह से। ओके, इसीलिए हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एनुअल रिंग एंड सेकेंड एनुअल रिंग। ओके, कि एक रिंग जो बन रहा है दैट इज 1 ईयर ऑफ ग्रोथ, उसके आगे एक और रिंग बन रहा है। हाँ, मतलब कैम्बियम ही रिस्पॉन्सिबल होता है वो ग्रोथ चेक करने की, ग्रोथ बढ़ाने के लिए, गर्थ बढ़ाने के लिए। मतलब वो चेक भी कर सकते हैं ना कट करके कितना साल का है। बट एक बार कट कर दिया, कितना साल पता चला तो वापस ज्वाइन नहीं कर सकते। हाँ वही। राइट, तो उसका हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए ऐसा नहीं कि कट किया देन यू सेल कि ओके कंटिन्यू ग्रोइंग, नहीं बोल सकते, राइट? ओके, बट ये कैम्बियम है, दैट इज करेक्ट। ठीक है, एंड जैसे जैसे चौड़ाई बढ़ रहा है द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वुड इज टेकिंग प्लेस, तो उसका एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी जरूरी है। तो जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है बाहर का उसको बोलते हैं कॉर्क। तो नाउ वी विल सी द कॉर्क आल्सो, बट ये टर्म समझा अच्छे से। ओके, एंड अंदर एक और होता है वैस्कुलर रेज, आल्सो कॉल्ड द मेड्यूलरी रेज। रे का मतलब है, नाम बोलते हैं रेज, बट दे आर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, जो यू कैन सी व्हील के स्पोक्स की तरह दिखना, सेंटर से पेरिफेरी, सेंटर से पेरिफेरी। रे पैरेन्काइमा का जो फंक्शन है इट इज कंडक्शन फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरी, स्टोरेज एंड कंडक्शन, वो मेड्यूलरी रेज है। पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, ठीक है, बट उसका अरेंजमेंट देखना कैसे, समझा? ठीक है, देन ओके, नाउ व्हाट इज दिस? अभी जैसे तूने बोला कि लकड़ी का पीस है, तो उसको अगर मैं काट के देखता हूँ, कभी ऐसे देखा रहेगा ना, लॉग्स ऑफ वुड बीइंग कट, ट्रक में ट्रांसपोर्ट करके हाँ। लेके जा रहे हैं, है ना? तो उसके अंदर ऐसे एकदम ध्यान से देखना रिंग्स दिखाई देगा। हाँ, तो नाउ यू नो मतलब हाउ बीटा दिस का रिंग्स आर फॉर्म्ड। हाँ, तो नाउ यू नो हाउ दिस रिंग्स आर मेड। ये ग्रोथ रिंग्स है ना, इट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम टिश्यू, कैम्बियम। है ना? तो ये जो सिंगल रिंग है उसको एनुअल रिंग या ग्रोथ रिंग बोलते हैं। एंड ईच ग्रोथ रिंग कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एक होता है ऑटम वुड
दूसरा होता है स्प्रिंग वुड। ओके, और एक पॉइंट याद हाँ है ना? यस, तो वन ऑटम वुड, वन स्प्रिंग वुड। डार्क साइड ऐसा रहता है। यस, करेक्ट। अभी एक ऑटम वुड एंड एक स्प्रिंग वुड मिलकर बनता है एक ग्रोथ ट्री। ओके। ओके, अभी ऑटम इज अ सीजन, स्प्रिंग इज अनदर सीजन। हाँ ऑटम का मतलब है आफ्टर मॉनसून बिफोर विंटर, तो इट्स लाइक अ इंडिया में भी ड्राई वैसे सीजन। ही। हाँ, होता है। हाँ नॉट इन अ प्लेस लाइक बॉम्बे, बट अंदर है इंटीरियर्स, राइट। तो वहां पे हाँ कैसे अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं एनवायरमेंट के। बट स्प्रिंग वुड का मतलब है आफ्टर विंटर ऑनसेट ऑफ समर, so that is more of a favorable condition. So main difference is in the availability of the water. ऑटम में पानी का कमी है, स्प्रिंग में पानी का सफिशिएंट अवेलेबिलिटी है। तो वो डिफरेंस वुड में नजर आता है कि पानी सफिशिएंट होगा तो जाइलम के सेल्स बड़े दिखेंगे, पानी कम रहेगा तो जाइलम छोटा दिखेगा। तो बिटवीन ऑटम वुड एंड स्प्रिंग वुड द मेन डिफरेंस यू विल सी इन द कंडक्टिंग एलिमेंट्स, इसीलिए डार्क लाइट ऐसा दिखता है। ओके, तो वन ऑटम एंड वन स्प्रिंग इज 1 ईयर ऑफ ग्रोथ। ये देखना है, ऐसे दिखेगा। इन अ zoomed वर्जन यू विल बी एबल टू सी। ये दिख रहा है जाइलम के बड़े बड़े वेसल्स, ये स्प्रिंग सीजन का है। और ये देखना छोटे छोटे वेसल ऑलमोस्ट बंद, ये ऑटम सीजन का है। तो स्प्रिंग ऑटम इज 1 ग्रोथ। इंटरेस्टिंग, राइट? ये पानी के अवेलेबिलिटी के हिसाब से प्लांट ने अपना ग्रोथ रिंग का स्ट्रक्चर बनाया, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। तो स्प्रिंग वुड इज ऑल्सो कॉल्ड अर्ली वुड, autumn wood is also called late wood. Okay, so now you know the season. तो xylem का बैंड यहाँ पे ब्रॉड है, यहाँ पे नैरो है। वाइड लूमेन थिन वॉल्ड वेसल्स, नैरो लूमेन थिक वॉल्ड वेसल्स। Okay, vessels are wide, that's why light in color. These are darker in color. And यहाँ पे vessels ज्यादा है, fibers कम है, या reverse. So this is also a very important question to understand. Exam है difference between ऑटम वुड या स्प्रिंग वुड, अर्ली वुड एंड लेट वुड। ठीक है, समझा ये सब सेकेंडरी ग्रोथ से कैसे रिलेटेड है? ओके, एंड जैसे कैम्बियम के एक्टिविटी में उससे जो प्रोड्यूस होता है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, दैट सेकेंडरी जाइलम व्हिच इज प्रोड्यूस इज द वुड ऑफ द प्लांट। तो प्लांट का जो वुड होता है ना, उसको हम सेकेंडरी जाइलम बोलते हैं। एंड उसके ऊपर एक कवरिंग होता है जिसको बोलते हैं बार्क, दैट बार्क इज मेड अप ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम। वो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट याद है, बार्क रिमूव किया था, है ना? ऐसे याद रखना। ये देखना, ये एक लॉक का सेक्शन। ओके, तो यू कैन सी ये ट्रांसवर्स सरफेस है। नॉर्मली इन अ लॉग इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, जो एकदम बीच का पोर्शन होता है ना इन अ मैच्योर वुड, उसमें सबसे बीच का पोर्शन इज जनरली डार्क इन कलर एज कंपेयर टू द आउटर पार्ट। तो ये जो डार्क वाला बीच का पोर्शन है ना, उसको बोलते हैं हार्ट वुड। द हार्ट इज इन द सेंटर, वैसा। एंड जो बाहर वाला पोर्शन है वो है सैपवुड। तो ये जो हार्टवुड पार्ट है, इट इज जनरली मोर थिक, डार्क, ड्यूरेबल एंड नॉन कंडक्टिंग। And a sapwood is a lighter portion where the growth rings are more prominent. And because sapwood, sap का मतलब है water with the dissolved minerals which is being conducted. So that is a conducting part. तो उसमें conduction हो रहा है। Then there is an inner bark, outer bark, right? And सबसे center में you can see the pith. ये सब चीज देखना कैम्बियम की वजह से। तो कैन इमेजिन प्लांट के एवोल्यूशन में कैम्बियम जैसा चीज जो इवॉल्व हुआ, जिसमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी था, बिकॉज ऑफ व्हिच यू आर एबल टू गेट सच ह्यूज टिम्बर स्पीशीज। एंड इमेजिन बहुत चौड़े चौड़े जो ट्रीज होते हैं, कितने मोटे। कैन इमेजिन हाउ मच ऑफ कैम्बियम एक्टिविटी विल गो ऑन इन दैट, राइट? तो अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन हार्टवुड एंड सैपवुड अच्छे से? ओके, तो ये देखना हार्टवुड एंड सैपवुड का डिफरेंसेस अगर आएगा तो। Okay, heartwood is the central portion, sapwood is the outer region. Sapwood is also called alburnum, heartwood is also called duramen.
ओके, अलग अलग नाम सब याद रखना है। सैपवुड में रिसेंटली फॉर्म्ड जाइलम होता है, हार्टवुड में ओल्ड जाइलम जो पहले कंडक्शन करता था अभी बंद हो गया, उसमें टैनिन रेजिन सब जमा करके रखे हैं। ओके, जो हम लोग चंदन लेते हैं कॉस्मेटिक के लिए, सैंडलवुड, वो उसका हार्टवुड है, विच वी यूज एज ए कॉस्मेटिक। उसमें वो जो वोलेटाइल ऑयल्स रेजिन सब कंपाउंड्स है ना, वो हार्टवुड में डिपॉजिटेड है, दैट इज व्हाई इट इज वेरी वैल्यूएबल। ओके, तो इट इज ऑफ लाइट कलर, इट कंटेन्स लिविंग सेल्स हियर। यहाँ पे ब्लैक टू डार्क ब्राउन कलर है, प्रेजेंस ऑफ डेड सेल्स। एंड यहाँ पे वेसल्स आर नॉट जनरली प्लग्ड, यहाँ पे वेसल्स आर प्लग्ड, अंदर सारा डिपोजिशन। तो अभी जो सैपवुड है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, द इनर पोर्शन ऑफ द सैपवुड विल कीप टर्निंग इनटू हार्टवुड। ओके, तो अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन अर्ली वुड, लेट वुड, सैपवुड, हार्टवुड? कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके, ये देखना, ये नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉर्क, जो एकदम बाहर का बार्क वाला पोर्शन, कि जैसे जैसे चौड़ाई बढ़ता जाएगा बाहर, आउटसाइड द ट्री बार्क, यू कैन सी एपिडर्मिस के जो सेल्स वगैरह वो कैसे टूट फूट जाते हैं, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम इनसाइड, मोर एंड मोर सेल्स एडेड, राइट? तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो बनता है, ओके, अंदर जो कॉर्टेक्स था दैट वाज द प्राइमरी कॉर्टेक्स, उसके डिवीजन से जो सेल्स बन रहे हैं दैट इज द सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ऑल्सो कॉल्ड एज द फेलोडर्म। ये याद रखना, सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज कॉल्ड फेलोडर्म। एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स में जो कैम्बियम टिश्यू है दैट इज कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम, दैट कॉर्क कैम्बियम इज कॉल्ड फेलोजेन। एंड ये कैम्बियम भी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है उसमें, बिकॉज ऑफ विच मोर सेल्स ऑफ द कॉर्क आर एडेड। तो जो फुल्ली फॉर्म्ड कॉर्क सेल्स हैं उसको बोलते हैं फेलम। ओके, तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स को बोलते हैं फेलोडर्म, कॉर्क कैम्बियम को बोलते हैं फेलोजेन, and the cork cells are called phloem. And as and when new cork cells are added, there are some broken cells or broken epidermal part you can notice here, consisting of complementary cells, जिससे ऐसा ओपनिंग जैसा क्रिएट हो जाता है। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा स्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, तो यू कैन सी समवॉट लाइक दिस, कि बाहर से लेकर अंदर तक कितने लेयर्स बन जाते हैं। इमेजिन दैट ह्यूज बैनियन ट्री दैट वी सॉ, गेटिंग इट? तो सबसे बाहर होगा कॉर्क दैट इज फेलम, followed by cork cambium that is phellogen, internally secondary cortex that is phelloderm. अब ये जो तीनों है, phellogen, phellem, phelloderm, these three, इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं पेरिडर्म। These three are together called as पेरिडर्म। तो ये याद रखना। Okay, this is also produced because of secondary growth, and this is the one formation of the periderm which gives rise to lenticels. Now see what are lenticels. Okay, ये दिखा रहेगा कभी प्लांट के स्टेम के ऊपर, कुछ कुछ प्लांट्स में बहुत प्रोमिनेंट है ना? ऑन दैट यू कैन सी दिस स्मॉल स्पॉट्स, कभी छोटे कभी बड़े, राइट? so there are these spots which are very clearly seen at times. ये होते हैं लेंटिसल्स, कि वो कॉर्क और उसका एक्टिविटी जो होता है ना, उसके वजह से जब ये डायग्राम में दिखा है कैसे फट गया है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स है, ब्रोकन एपिडर्मिस है, those openings are called lenticels. So whenever you happen to see this in the plants next time, you have to revise कि ये है lenticels. कुछ plants में बहुत prominent होते हैं। You remember सप्तपर्णी एल्स्टोनिया स्कोलैरिस? अभी अभी मैंने उसका फोटो भेजा था फ्लावरिंग फ्रूटिंग का, उसके स्टेम के ऊपर लेंटिसल्स बहुत प्रोमिनेंट है। ओके, लाइक दैट। तो ये डायग्राम में देखना, इट लुक्स लाइक दिस। So there is phelloderm, phellogen and phellem, these three forming the lenticel. अच्छी तरह समझा ये पार्ट? हाँ, ओके, अब ये लेंटिसेल्स का भी अगर देखा जाए तो इट इज प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ,
बट इट्स फंक्शन इज गैसियस एक्सचेंज, एंड कहीं ना कहीं से इसमें से भी थोड़ा ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट्स में. मेजर ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स इज बाय द स्टोमेटा, but otherwise lenticels also contribute towards transpiration. ठीक है. So plant tissues and anatomy, I suppose, is this much. Okay, we have studied the primary complete anatomy we have discussed today, plant anatomy. तो primary structure पहला देखा, root stem leaf तीनों का. Okay, the arrangement of the cells inside, हाँ that was followed by the activity of cambium in the stem leading to secondary growth. हाँ एंड सेकेंडरी ग्रोथ के वजह से जो सेकेंडरी जाइलम दैट इज द वुड, सेकेंडरी फ्लोएम दैट इज द बार्क, देन द bark, कॉर्क फॉलोड बाय लेंटिसल्स. ये सब हमने उसका देखा. फिर वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट हार्टवुड, सैपवुड, अर्ली वुड, लेट वुड. हाँ ठीक है, सब समझा अच्छे से ऑल दीज कंसेप्ट्स. हाँ So with that we come to the end of this small lesson, that is plant tissues and anatomy. अच्छा है, याद रहेगा. हाँ. क्विकली सच 5 में मिनट में. स्मॉल था, एक्चुअली इट वाज नॉट 3 वेरी बिग, लेक्चर्स में हो गया. बट ये बहुत 3 जरूरी है. लेक्चर्स में हो गया. या एक्चुअली मैंने हाँ भी सोचा था कि लाइक इट माइट टेक मोर नंबर ऑफ लेक्चर्स, बट ये हो गया अच्छे से, हाँ है ना. हाँ गुड. अच्छा, तो क्विकली एक ओवरव्यू रिवीजन हो जाए फटाफट, हाँ है ना. यू विल कम हाँ टू नो ना कि कितना रिकलेक्ट हो रहा है ऐसा करके, राइट. हाँ. ओके, पढ़ो ये देखिए. उसका मजा है बिना पढ़ के ट्राई करने का, राइट. Lignified walls are found in parenchyma. लिग्निफाइड का मतलब है वॉल्स आर थिक, देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन. हाँ तो जाइलम. करेक्ट. ओके, जाइलम तो सेल्स आर मीनिंग नहीं समझा लिग्निफाइड. था. हाँ, जाइलम हाँ को लिग्निफाइड बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. the hard shell of coconut and fibers of cotton consist of. हाँ हार्ड रहता है. कोकोनट शेल फाइबर्स. पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा सबसे छोटे पतले सेल्स जो ग्राउंड टिश्यू वाला काम करते हैं, स्टोरेज. केलेनकाइमा. यस, इट इज क्लेरेन्काइमा. हाँ ओके, एकदम थिक वॉल्ड डेड सेल्स. हाँ. ठीक है. या The tissue responsible for providing buoyancy and resistance to bending stress in aquatic plant is. पानी में फ्लोट होने में सब आसान. पेरेन्काइमा. एरेन्काइमा, करेक्ट. हाँ अरे नाम वो से ही पता बेयोंसी चलता था ना इसलिए. है. करेक्ट. ओके, गुड. The internal structure of midrib in a dicot leaf does not show presence of dicot. डाइकॉट लीफ, मिडरिप. Does not midrib. मिडरिप के सेक्शन में इसमें से क्या नहीं दिखेगा. डाइकॉट में ऐसा कटा और मिजोफिल दिखेगा. मिडरिप में नहीं दिखेगा ना, लीफ में दिखेगा. मिडरिप मतलब बीच का वेस्कुलर ओके बंडल पार्ट. मिड्रिप. ओके हाँ, ओके वो मिड्रिप. हाँ उसमें फिर है ना. मिजोफिल नहीं दिखेगा. एग्जैक्टली तो उसमें हाँ जाइलम फ्लोएम मुझे लगा दिखेगा. लीफ को मिड्रिप में काटा तो मिड्रिप भी देखेगा. ओके, नाउ यू अंडरस्टूड ना. हाँ. नेक्स्ट. Vessels are a part of the dash. Teeth. वेसल्स. Vessel. सर्कल वाला. वेसल्स, अरे बर्तन वाला नहीं गोल रे. ना. नहीं वेसल नहीं हाँ. गोल वाला गोल. गोल वाला जिसमें से सर्कल. पानी का हाँ कंडक्शन होता है. हाँ तो मेरिस्टेम. हाँ. गोल वाला ना. एक मिनट. वेसल्स, ट्रकीड्स, वेसल्स याद है. हाँ जाइलम. हाँ, जाइलम हाँ वेसल्स बोलते हैं जाइलम ना हम लोग, में. हाँ कंडक्टिंग जाइलम में एलिमेंट्स, है ना. ट्रकीड है. हाँ. हाँ हाँ गुड. अच्छा है ना, ऐसे याद हो जाता है तो. हाँ. Right. Dash is found in the wood of only angiosperms with a few Exceptions. exceptions. मतलब
इसमें से कौन सा टिश्यू है जो सिर्फ एंजियोस्पर्म के वुड में मिलेगा, दूसरे प्लांट के वुड्स में नहीं मिलेगा, लाइक टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स के वुड में नहीं मिलेगा? किड्स। वेसल्स। नहीं पॉइंट नहीं रह गया था, आंसर इज वेसल्स। जो जाइलम वेसल्स है ना, यू विल फाइंड दैट ओनली इन एंजियोस्पर्म वुड। बट जाइलम फ्लोएम तो जाइलम फ्लोएम रहेगा, जिम्नोस्पर्म में भी जाइलम है बट उसमें ट्रकीड्स है, वेसल्स नहीं है। ओके एंजियोस्पर्म के जाइलम में ट्रकीड्स एंड वेसल्स दोनों हैं, बट ज्यादा करके वेसल्स। ओके हाँ। ओके, तो आंसर इज वेसल्स। ठीक है, नेक्स्ट। Mesophyll tissue is seen in the internal structure of leaves. करेक्ट, अब इजी हो गया ना क्वेश्चन। Meristematic tissue is not often seen in the heartwood. करेक्ट, हार्टवुड तो डेड सेल्स हो गया ना बीच में, हाँ डेड राइट? सेल्स हो गए। टिप्स वगैरह में मेरिस्मेटिक रहेगा। गुड। In the primary structure of dicot stem, the dash is located between the epidermis and the endodermis. हाँ पेरिसाइकल। हाँ, बिटवीन एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। उनके नीचे तो कॉर्टेक्स रहता है। एपिडर्मिस के नीचे क्या हुआ? विच टिश्यू आफ्टर द एपिडर्मिस इज? पित्त सो सबसे अंदर है, सबसे बाहर एपिडर्मिस, हाँ उसके राइट? बाद उसके नीचे बहुत सारे लेयर्स ऑफ कॉर्टेक्स, एंड कॉर्टेक्स का आखिरी लेयर एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरिसाइकल। याद आ रहा है? नहीं कॉर्टेक्स तो नीचे है ना, नीचे किधर? मतलब पहले एपिडर्मिस, करेक्ट। उसके बीच में पेरिसाइकल, उसके बाद एंडोडर्मिस, उसके नहीं, बाद अरे अरे कॉर्टेक्स। अरे अरे सबसे पहले एपिडर्मिस, हाँ ओके, उसके बाद कॉर्टेक्स, जहां वो तो कॉर्टेक्स नीचे। खत्म होगा वहां एंडोडर्मिस। ओके ओके, एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकल, ओके हाँ एंड उसके बाद जाइलम फ्लोएम। ओके ठीक है, इसलिए तो एंडोडर्मिस में पैसेज सेल, कैस्पेरियन स्ट्रिप वगैरह था ना, कॉर्टेक्स से जो हाँ पानी आ रहा है वो डायरेक्ट करने के लिए। हाँ ओके, तो यहाँ क्वेश्चन इज आस्किंग लोकेटेड बिटवीन एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस, हाँ so it is the कॉर्टेक्स। cortex. ठीक है, नेक्स्ट। पेरिडम डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, हाँ अभी हुआ, फ्लोएम। हाँ, ओके, Sieve tubes are associated with dash cells in phloem. Sieve चारों ऑप्शन पढ़। tubes. सीव ट्यूब के साथ कौन से सेल्स होते हैं? हाँ कंपेनियन। हाँ, कंपेनियन सेल, याद है ना, गहरी दोस्ती। हाँ हाँ वो तो हाँ। ओके, ये बता नेक्स्ट। The dash meristem leads to increase in the girth of the plant. Vascular. ओके, आई थिंक ऑप्शंस दे में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। आंसर वैस्कुलर भी करेक्ट है, लैटरल भी करेक्ट है। वैस्कुलर Vascular में टिश्यू बढ़ता के है ना वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो हाँ गर्थ बढ़ेगा, लैटरल मेरिस्टम डायरेक्टली हाँ गर्थ बढ़ाता है। okay. ओके, बोथ आर करेक्ट, वैस्कुलर इज आल्सो करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। The dash are found more on the lower epidermis of dicot leaves. Epidermis है ना, टोमेटो नीचे होता है। आंसर इज लेंटिकल्स। हाँ, लीफ में किधर लेंटिसल? हाँ लीव्स में नहीं है ना, हाँ तो हाँ वेसल्स वेसल्स हाँ हाँ हाँ, लीव्स में नहीं है। वेसल नहीं रे, टोमेटा। टोमेटो नहीं, टोमेटो तो लोअर एंडोडर्मिस में एपिडर्मिस है। में ही ज्यादा मिलता है ना, बिकॉज इट इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सन।
मैंने सब डायग्राम मिक्स कर दिया एक मिनट का। हाँ हो हाँ गया, हाँ दिमाग में हाँ पूरा भेलपुरी बन गया है, बाद में सारे हाँ, इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट कर तो यू विल हाँ, रिकलेक्ट। ओके, मैं वो रूट का देख रही थी, सोच नहीं रही नहीं, थी लीव अभी। लीव। ओके, एग्जाम में भी हाँ क्वेश्चन ली, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। आ जाएगा, अभी फर्स्ट हाँ। टाइम पढ़ाई करके द मोर यू प्रैक्टिस इट विल बी क्लियर। Dash is the mature secondary xylem in plant. Xylem, wood. करेक्ट, वुड मतलब सेकेंडरी जालम, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट। Dash is mainly concerned with food storage. Food ना, हाँ तो parenchyma. नाउ यू आर क्लियर अबाउट दिस, राइट? हाँ, dash is the last layer of cortex. हाँ, endodermis. अभी याद हो गया एकदम। गुड। ठीक है, the simplest and the most abundant tissue in any plant is the parenchyma. करेक्ट, जहाँ कुछ नहीं वहाँ पैरेंट। हाँ बोलते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका खुदा यार, तो यहाँ हाँ। पैरेंट। नेक्स्ट। Vascular bundles are said to be open if the cambium is present. करेक्ट, क्या बात है, वेरी गुड। नेक्स्ट। Potato tuber mainly consists of parenchyma. अरे 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 स्नेहा, Potato tuber. उसमें क्या स्टोर्ड है, हम लोग क्यों खाते हैं वो? हाँ parenchyma. Tuber, okay, वो पूरा पोटैटो, पोटैटो, उसको ट्यूबर बोलते हैं ना, स्टेम ट्यूबर, याद है? पूरा पोटैटो। हाँ हाँ, हाँ, स्टेम मुझे वो वाइट मॉडिफिकेशन। वाला लगा, वाइट वाइट नहीं पोटैटो के नहीं, ऊपर नहीं आता। वो ट्यूबर हाँ किधर है, पूरा वो पोटैटो। एडवेंटिशियस बर्ड है। हाँ ओके, ठीक है। ओके, हाँ। लास्ट वन। Growth rings in plants are seen in the secondary xylem. क्या बात है, वेरी गुड, दे ताली। गुड। सो फाइनली द लेसन इज क्लियर एंड अंडरस्टूड, ठीक है, हाँ अच्छे से समझा, मजा हाँ आया, प्लांट टिश्यूज एंड एनाटॉमी, हाँ राइट? सो यू कैन हाँ अंडरस्टैंड कि नेचर ने कितना बढ़िया तरीके से इसको डेवलप किया है। इट हैज ऑल बीन डेवलप्ड ऑन इट्स ओन इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, कि बेस्ट हम्म, थिंग्स स्पेशली द जाइलम एंड फ्लोएम इफ यू सी, है ना, कितना सही तरीके से प्लानिंग के साथ अंदर अरेंज है। तो यू ऑब्जर्व एनी प्लांट, उसके अंदर हाँ जाइलम बराबर से पानी सप्लाई कर रहे हैं, फ्लोएम बराबर से फूड सप्लाई कर रहे हैं, सो द हाँ प्लांट इज सर्वाइविंग। इनको सबसे बड़ा जो चैलेंज है प्लांट के लिए, इट इज लाइक जहां वो ग्रो होना शुरू हुआ, हजारों साल उसको वहीं जीना है। राइट, तो वहां रहकर इट हैज टू मेक द बेस्ट ऑफ ऑल द रिसोर्सेस, दैट्स व्हाई द हाँ इंटरनल स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट्स ऑन दिस, राइट? हाँ, तो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टडी, एनाटॉमी एंड ऑल इफ यू डू, एंड फ्यूचर में भी लाइक इसके ऊपर भी बहुत सारा करियर ऑप्शंस है, सेक्शन लेकर उसको स्टडी करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेनिंग टेक्निक्स, तो सेल्स कितने कॉन्ट्रास्ट तरीके से दिखते हैं, राइट? उसके ऊपर माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोप्स हैं, बहुत कुछ है करने के लिए, right? The more you study, the more you will come to know, right? So finally, we have one more feather in our cap, that is plant tissues and anatomy. ठीक है, समझा? रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, हाँ। सारे टर्म्स याद रखना है, ठीक है? ओके।